آداب، آپ جے کے ویژن دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں سید نیاز شاہ، خبر دکھا رہے ہیں پنچ سے۔ جامعہ معین السنہ جنیار ڈینگلہ پنچ کے زیر اہتمام 2 روزہ عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ آنے والے سنیچروار اور اتوار بروز 21 اور 22 مئی سن 2022 عیسوی کو یہ عظیم الشان کانفرنس محبت رسول کے نام سے جامعہ معین السنہ جنیار ڈینگلہ پونچھ میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس میں ہندوستان بھر کے کئی بڑے جید علماء کرام شمولیت فرما رہے ہیں، جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے علماء کرام سے لے کر کے کئی بڑے نعت خواں حضرات سمیت خطیب جموں و کشمیر مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب سمیت کئی بڑے دیگر علماء کرام بھی اس 2 روزہ عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس میں عوام الناس سے مخاطب ہوں گے اور محبت رسول پر مدلل و مفصل بیانات کیے جائیں گے۔ آج مفتی بشارت حسین ثقافی صاحب اور ڈینگلہ جنیار کے دیگر معززین نے عوام الناس سے پرخلوص اپیل کی ہے کہ وہ اس 2 روزہ محبت رسول کانفرنس میں آنے والے سنیچروار اور اتوار کو شمولیت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کانفرنس میں آنے کے لیے دیگر عوام کو بھی مدعو کریں اور کانفرنس کے منتظمین کا تعاون بھی کریں۔ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ پاک کی فضل و کرم سے ہمارا ادارہ جامعہ معین السنہ جو شہر پنچ سے 5-6 کلومیٹر پیچھے ڈینگلہ جنیار کے مقام پہ واقع ہے، وہ ادارہ لاک ڈاؤن سے قبل بھی اور اس سے پہلے بھی یہاں پہ کانفرنس سے منعقد کرتا آ رہا ہے، لیکن اس سال آنے والے سنیچروار اور اتوار یعنی 21 اور 22 مئی کو یہاں جامعہ معین السنہ کے زیر اہتمام 2 روزہ عظیم الشان محبت رسول کانفرنس منعقد کرنے جا رہا ہے، جس میں پہلی مرتبہ اہل پنچ کے لیے بڑے فخر اور خوشی کی بات ہے کہ 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد اور ان کے خاندان سے، ان کے نبیرہ، ان کے خانوادہ سے حضرت علامہ الحاج محمد تسلیم رضا خان صاحب مرکز اہل سنت بریلی شریف سے تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا تنعیم رضا خان صاحب بھی ہوں گے۔ اور اس کانفرنس کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت عالم اسلام کی بہت بڑی عبقری اور عظیم روحانی اور علمی شخصیت 40 سال تک بریلی شریف میں شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز رہنے والے عالم دین حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی سید محمد عارف رضوی برکاتی دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے، اور اس کانفرنس میں قوم مسلم سے خطاب فرمانے کے لیے اور اسلام کا جو ایک پیغام ہے، کیونکہ اس وقت جو آج دور ہے وہ ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نفرت کا ماحول ہے، کہیں ذات اور قبیلے کی نفرت، کہیں سیاست کی نفرت، کہیں برادری اور خاندان کی نفرت، کہیں مذہب کو لے کر کے نفرت ہی نفرت کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے، جو سماج کے لیے ایک ناسور ہے، اور بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان جو ساری دنیا میں اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، یہاں پہ ہر مذہب کا انسان بستا ہے۔ یہ ایک ایسا گلدستہ ہے کہ جس کے اندر ہر طریقے کا پھول آپ کو نظر آئے گا، لیکن اس باغ کے اندر، اس ہندوستان کے چمنستان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں نفرت کو ہوا دے کر کے اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کی بے جا کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کو جوڑیں اور ایک ایسا پیغام اور ایک ایسا میسج دیں کہ سب سے بڑی چیز انسانیت ہے، اور اس انسانیت کا پیغام ہمارے پیغمبر، اسلام کے پیغمبر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک محبت کا پیغام ہے، اس کو عام کرنا ہمارا اس کانفرنس کے سٹیج سے مقصد ہے۔ اسی لیے ہم نے اس کا نام بھی محبت رسول کانفرنس رکھا، کیونکہ وہ ہر انسان کے لیے، ہر جہان کے لیے، ہر چیز کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ اس کانفرنس کے اندر جو خطاب کرنے کے لیے اسکالر تشریف لا رہے ہیں، ان میں ہندوستان کے بہت بڑے اسکالر اور بین الاقوامی انٹرنیشنل لیول پر اپنی شہرت رکھنے والے حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر مفتی شہریار خان صاحب
बिहार पूर्णिया से तशरीफ़ ला रहे हैं, और उनके साथ साथ हज़रत मौलाना डॉक्टर उमर नूरानी साहब जो बहुत बड़े आलिम हैं, बिहार गया से तशरीफ़ ला रहे हैं, और मुसलमानों के दिलों में इश्क़ रसूल की शमा को रोशन करने के लिए कश्मीर से हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब, ये 3 खुसूसी स्पीकर होंगे इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के। और नाते नबी के नगमे अपने मखसूस लबो लहजे में सुनाने के लिए कलकत्ता से शादाब पैकर नात ख़्वां जो जोड़ी है, बहुत बड़ी शोहरत रखते हैं हिंदुस्तान में, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके अलावा जामे नईमिया मुरादाबाद एक बहुत बड़ा इदारा है हिंदुस्तान का, वहाँ से हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। ये तमाम उलमा और अकाबिर हमारे जो बैरून रियासत से तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारा यही मकसद है कि आज इस एक जो पुरफितन दौर है और हर इंसान बेचैन है, हर तरफ नफ़रत का माहौल है, हर तरफ जो है अफरा तफरी का माहौल है, ऐसे वक्त में नबी रहमत का पैगाम रहमत घर घर पहुँचाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यहाँ डिंगला जनियाड़ पुंछ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो हो रहा है। इसमें 21 और 22 को यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होगी। जिस जगह आप खड़े हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा थोड़ा कैमरा घुमा करके आप हमारे सामईन और नाज़रीन को दिखाएंगे। ये यहाँ पंडाल लगेगा, और उसके अलावा पार्किंग के लिए मुकम्मल सफिशिएंट इंतज़ाम हमने यहाँ पे किया है, गाड़ियों के लिए, VIPs के लिए, और उनके अलावा भी इस मौके पर मैं अवामुन्नास से अपील करूँगा कि 21 और 22 मई को अपने नबी की महब्बत में सरशार होकर उमड़ते हुए सैलाब की तरह इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाकर पुंछ की तारीख़ में एक अजीम इवेंट इसको साबित करेंगे आप लोग। उसके अलावा मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिलखुसूस DC साहब और SSP साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस कॉन्फ्रेंस को लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सीरियस है, और आज DC साहब ने हमें बुलाया भी है। इसके लिए उन्होंने परमिशन हमें जो है वो ग्रांट की है। मैं उसके लिए अपनी इस पूरी टीम की तरफ से, यहाँ की मैनेजमेंट की तरफ से और यहाँ विलेज के इन मुअज़्ज़िज़ीन की तरफ से DC साहब का, SSP साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और अपील करूँगा कि ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ में डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं बल्कि इसको आप प्रोविंस लेवल की कॉन्फ्रेंस अगर कहें तो गलत नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि 20 और 30 हज़ार के बीच में यहाँ गैदरिंग होगी, बल्कि बढ़ भी सकती है। इसलिए मैं आपकी विसादत से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करूँगा कि इसमें अपना पूरा हमारा कोऑपरेट करें और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में अवाम ख़वास सब लोग मिल करके इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करें। एक मरतबा फिर पुंछ की बाग़यूर आवाम से मैं गुजारिश करूँगा कि इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। हम सब आपके मेज़बान होंगे, आप रसूलुल्लाह के मेहमान होंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस को सारे आलम इस्लाम के लिए, बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और पुंछ के लिए अमन और सलामती का एक ज़रिया बनाए। एक ऐसा मैसेज यहाँ से जाए जिस मैसेज के द्वारा, जिस मैसेज के ज़रिए हमारा मुल्क, हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा पुंछ आगे बढ़े और ब्रदरहुड, भाईचारा, अमन, पीस और शांति का एक समा और एक माहौल यहाँ से सारी दुनिया के नाम नशर किए। आप पूछें। इसके अलावा जितनी यहाँ पे हमारी पब्लिक आएगी, हमारे इदारा जामे मोइनुस सुन्ना की मैनेजमेंट और हम सब लोगों की तरफ से, हमारी इस इंतज़ामिया की तरफ से तमाम पब्लिक के लिए आम लंगर रसूल का एहतमाम हमने किया है। इस निस्बत से पीने के पानी और उसके अलावा खाने का मुकम्मल इंतज़ाम आवाम के लिए है। इसलिए तमाम आवाम से हमारी गुजारिश है कि आप 2 दिन इस कॉन्फ्रेंस के लिए वक्फ़ करें और इसे कामयाब बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौज़िया डिंगला में इस चैनल की वसादत से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुझसे कबल मुफ्ती बशारत हुसैन शिकाफ़ी साहब ने कोई भी फ़र्क, किसी किस्म की ज़ेर ज़बर नहीं छोड़ी है। कई अरसा से, कई दिनों से ये बार बार ये चीज़ें इंटरव्यू दे रहे हैं। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस जो कि आवाम को पता चल गया है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल गया है, ये महब्बत कॉन्फ्रेंस महब्बत रसूल है। महब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस, ये वो शख्सियतें, ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने अमन ही का दर्स दिया है। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए हाफ़िज़ अपने बशारत शिकाफ़ी साहब, जो कि मुफ्ती साहब यहाँ के बड़े एक अहम शख्सियत हैं, इनका कद तो थोड़ा है लेकिन इनकी सोच बड़ी ऊंची है, इनकी सोच बड़ी ऊंची है और ये यहाँ नहीं बल्कि इंडिया तक छाए हुए हैं। मैं यहाँ से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि DC साहब, यहाँ का जो इंतज़ाम है ये आपके सिर पर है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो मैं SP साहब को, सीनियर सुपरडेंट ऑफ पुलिस से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सर, लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदारी आपके सिर पर है। जहाँ ट्रैफिक की ब्रांच यहाँ है, मैं उनको भी, जो यहाँ के DSP साहब हैं ट्रैफिक के, उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि वो ट्रैफिक के माहौल को संभालें।
बाकी यहाँ कम से कम भी, जैसे कि मुफ्ती साहब ने यहाँ पहले ही मुझसे कह दिया है, कम से कम भी 30,000 से ऊपर ही आवाम यहाँ होगी। तो बाकी यहाँ का जो आज ये जो कॉन्फ्रेंस 2 दिन की है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक ही है, मोहब्बत रसूल, इंसानियत किसको कहते हैं। और मोहब्बत क्या है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब के लिए एक मोहब्बत का यहाँ से एक पैगाम भेजना है हमने। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मुफ्ती बशारत साहब, ये आपकी बड़ी ऊंची सोच है और ये आपका बड़ा ऊंचा दिमाग है, आपको मुबारक हो। ऐसे लोग अगर हमारे समाज में पैदा हो जाएं तो बुराइयां जो हैं दूर हो सकती हैं। मैं आवाम से यह गुजारिश करूंगा कि आवाम को 2 दिन के लिए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि जो खातून हजरात हैं, मुस्तूरात हजरात हैं, उनके लिए भी अगर वो आएँ तो हमारे पास यहाँ बिल्डिंगें हैं, वो भी यहाँ से पैगाम लेकर जाएँ। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसी पर आपका मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारा ये आवाज़ हमारी जो है कैप्चर की है और आवाम लोगों तक ये पहुँचाएँगे। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ और ख़ास करके मुफ्ती साहब का शुक्रगुजार हूँ। उनके साथ अलमा हजरात यहाँ इकट्ठे हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई गलती हो तो माफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे यहाँ पे हाफ़िज़ बशारत सकाफ़ी साहब ने कबल वक्त से पहले ही इंटरव्यू दे चुके हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। आपने इस पंचायत की तरफ से जितना भी कॉपरेट हमारे यहाँ पे मौज़ीन साबका सरपंच अलहाज चौधरी मोहम्मद बशीर बजरान साहब मौजूद हैं, वो इस पंचायत की पूरी क़यादत संभाले हुए हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर फज़ल करम करेगा कि हमारी ये जो 2 रोज़ा सीध कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसमें अल्लाह मदद करेगा। तो मैं अपनी पंचायत की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें रोल अदा किया जाएगा वो मैक्सिमम किया जाए। गाड़ियों के बारे में है, पानी का मसला है, सड़क का मसला है, और कुछ छोटे मोटे हमारे यहाँ पे हमें स्लीपर चाहिए, जंगलात से लेने हैं। डीसी साहब और एसपी साहब के हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे हाफ़िज़ बशारत साहब को ये परमिशन दी है इसके करने के लिए, मनाने के लिए 2 रोज़ा सीध कॉन्फ्रेंस। लेकिन इसका जो मैनेजमेंट है, इंतज़ाम है, वो हम एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद रखेंगे कि वो पूरा हमारा इसमें कोऑपरेट करेंगे। बाकी रहा हमारा मैसेज जो पब्लिक को देना है, वो हाफ़िज़ साहब ने कह दिया है। इंसानियत के लिहाज से हर मज़हब का वो हमारा भाई, चाहे वो हिंदू हो, सरदार हो, वो इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए। हम उनको भी मदऊ करते हैं कि ये रसूल मोहब्बत कॉन्फ्रेंस जो की जा रही है, ये इंसानियत के नाम पे की जा रही है, ये वाहिद किसी मजहबी लिहाज से नहीं है। हमारे आपने तो आएंगे जो गैर मुस्लिम हैं, हम उनको भी ये अपील करते हैं कि वो भी इस कॉन्फ्रेंस में आएँ, वो भी ये मैसेज लेकर जाएँ कि हमारा अमन, भाईचारा, शांति कायम रहे। अस्सलाम वालेकुम। बेबाक सहाफ़त की निडर आवाज़ जे टेलीविज़न के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले हर खबर पहुंचे आप तक।